افغان طالبان حکومت کی آمرانہ پالیسیوں نے افغانستان میں میڈیا ایک بار پھر خاموش کرا دیا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا سے انکار پر افغان طالبان نے دوسرے بڑے نجی چینل شمشاد نیوز کی نشریات بند کر دی۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنے پر شمشاد ٹی وی کی نشریات کو معطل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان حکومت نے شمشاد نیوز کی ٹی وی، ریڈیو اور سوشل میڈیا سروسز یکساں طور پر معطل کر دی۔ اسی بارے میں بات کریں گے نمائندہ خصوصی اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران، مزید کہیے گا۔ جی، قومی ٹیلی ویژن کی نشریات جو ہیں، جو شمشاد نیوز ہے، اس کی نشریات 3 صوبوں قندھار، تخار اور بادغیس میں معطل کی گئی ہیں۔ بندش کی وجہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنا اور طالبان حکومت کا موقف نشر نہ کرنا ہے۔ افغانستان میڈیا پر دباؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ اور آزادی اظہار مزید محدود کر دی گئی ہے۔ افغان جرنلسٹ سینٹر کا یہ کہنا ہے طالبان کے مدد کی آڑ میں بنائے گئے نام نہاد قوانین نے میڈیا کی آزادی طلب کر لی ہے۔ افغان طالبان کے تشکیل فیصلے پہلے بھی افغان خواتین اور صحافیوں کے لیے جبر کا ماحول پیدا کر چکے ہیں اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنے کا انتقام لینا طالبان کی تنگ نظری کا ایک مکمل طور پر وتیرہ بن چکا ہے، علامت بن چکا ہے۔ تو اس لیے طالبان حکومت کا جو نیا ظالمانہ اقدام ہوا ہے اس میں شمشاد ٹی وی کی جو نشریات ہیں ان کو معطل کر دیا۔ عمران، یہ بھی کہے گا کہ طالبان کے مذہب کی آڑ میں بنائے گئے نام نہاد قوانین نے میڈیا کی آزادی کو سلب نہیں کر لیا؟ جی بالکل، وہاں پہ میڈیا کی آزادی کو ویسے ہی سلب کیا گیا ہے۔ کچھ جو خواتین کی جو وہاں پہ جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور جو مختلف آزادی اظہار کی جو مختلف طریقے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے، اور افغان خواتین اور صحافیوں کے لیے جبر کا ماحول پیدا کیا گیا ہے مختلف جو ہے نام نہاد اسلامی قوانین کے تحت۔ جی، جو ہے وہ وہاں پر کافی زیادہ میڈیا کو مسائل کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ محمد عمران، نمائندہ خصوصی اس متعلق بتا رہے تھے۔ پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ قطری وزارت خارجہ نے جنگ بندی کی تصدیق کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں مذاکرات کے دوران ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں ہوا۔ دونوں ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان امن اور استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ امید ہے جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کرے گی۔ اس سے قبل گزشتہ روز قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ سیکیورٹی حکام نے بھی وزیر دفاع کی معاونت کی۔ افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ پاکستان نے فتنہ الخارج کی دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا۔ مذاکرات کا پہلا دور 13 گھنٹوں تک جاری رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے لاہور جاتی عمرہ میں ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے نواز شریف کو پاک افغان مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس دوران نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک تھی۔ اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات جاتی عمرہ میں ہوئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دوحہ معاہدے کا خیر مقدم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ معاہدہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ برادر ملک قطر اور ترکیہ کی تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں، جس کی میزبانی ترکی کی طرف سے کی جانے والی اگلی میٹنگ میں کی جائے گی، تاکہ افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ استنبول میں 25 اکتوبر کو وفود کی دوبارہ ملاقات ہوگی، جس میں تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ خواجہ آصف نے سیز فائر معاہدے میں ترکیہ اور قطر کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ اور قطر برادر ممالک ہیں، ہم ان کے تعاون کے بے حد مشکور ہیں۔ سیز فائر معاہدہ خطے میں امن و استحکام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादी का कतर के दारुलहुकूमत दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी माहदे का खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर माहदा इलाके इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान हमेशा पुरअमन बकाए बाहमी मुज़ाकरात और हमसाया ममालिक के साथ एहतराम पर यकीन रखता है। अमन और इस्तेहकाम दोनों ममालिक के अवाम की इज्तमाई ज़रूरत है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के 45 लाख पनाहगज़ीनों की खिदमत की है। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की खिदमत करके हमसायगी की लाजवाल दास्तां रकम की है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़्यादा कीमती जानों का नजराना दिया। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है। सियासी और अस्करी क़यादत के इत्तफ़ाक़ राय से मुमकिन होने वाली जंग बंदी खुशाइंद है। वज़ीर इत्तलात ने ICC के अफगान क्रिकेटर्स के हवाले से जाली और यकतरफा बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान जो सरहदी दहशत गर्दी का शिकार है, कहा कि ICC ने बगैर किसी आज़ाद तहकीकात के झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं कि अफगान क्रिकेटर्स एक फ़ज़ाई हमले में मारे गए। वज़ीर इत्तलात ने ICC की जानिबदारी और सियासी प्रोपेगेंडे को गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए और ICC को अपनी गैर जानिबदारी बहाली करनी होगी। पाकिस्तान ने ICC की मौजूदा क़यादत पर जोर दिया कि वो खेल के उसूलों की पासदारी करे और सियासी मफादात को खेल में शामिल न होने दें। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल पाकिस्तान ने पहला हाइपर वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं 20 वज़राती इजलास में शिरकत हुई। इजलास में सरमाए की लागत, कर्ज और तरक्की के रास्ते के मौजू पर बहस हुई। वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान में सैलाबों की बढ़ती हुई शिद्दत और तसलसल को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोप से मुलाकात भी हुई। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं 20 वज़राती इजलास में शिरकत। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने लॉस एंड डैमेज फ़ंड को फौरी तौर पर फ़ाल करने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड में फ़ैसला साजी के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोप से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मज़हर करार दिया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तार डियोप को रेकोडिक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने ज़ैली सतह पर मालियाती ताउन और डिजिटल पेमेंट राइट्स के मनसूबों में IFC की मुआवनत को सराहा। इस मौका पर वज़ीर ख़जाना और मुख्तार डियोप ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। KP असम्बली का इजलास पीर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आला और स्पीकर असम्बली इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती से स्पीकर हाउस पेशावर में मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने असम्बली का इजलास कल तलब करने की तजवीज़ पेश की, जिस पर स्पीकर ने इत्तफाक किया है। असम्बली इजलास से मुतल्लिक बाज़ाब्ता एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें, असम्बली इजलास से मुतल्लिक बाज़ाब्ता एलामिया भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। KP असम्बली का इजलास पीर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आला और स्पीकर असम्बली की मुलाकात हुई है। सुहेल अफरीदी की स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती से स्पीकर हाउस पेशावर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। असम्बली इजलास से मुतल्लिक बाज़ाब्ता एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। KP असम्बली का इजलास पीर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आला और स्पीकर असम्बली में इत्तफाक हो गया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। कराची में CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर शहरी रहमान का कहना था 1 माह के बाद पार्टी की CEC मीटिंग होगी, जिसमें वफाकी हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा और हतमी लाहे अमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, एक बहुत अहम सतून रहे और हमारी कोई ऐसी मुतालबात है नहीं, हमने कोई मरात नहीं मांगी है, ना हम काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। तो जो मसले मसाइल हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे। 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पीपल्स पार्टी की CEC होगी, हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह के वो प्रोमिसेस सामने, उनकी क्या क्या डिटेल सामने आई है और कितने उन्होंने फुलफिल किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं। फिर हम अपना लाएमत भी तय करेंगे।
शेखुपुरा में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में अवामी फलाह के नए मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मुल्क में तरक्की हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुई और तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स नून लीग के अदवार में मुकम्मल हुए। राना तनवीर हुसैन ने मजीद कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं कि कोई हमसाया मुल्क पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाए। बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफगानिस्तान ने नमक हरामी की है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। TLP पर पाबंदी के हवाले से वफाकी वज़ीर ने कहा कि मामले का मुकम्मल जायज़ा लिया जा रहा है। सियासी बात हर जमात का हक है, मगर तकरीब कारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब वो इंडिया की अगर एजेंट बन के या उनकी प्रॉक्सी वार शुरू करेंगे तो यही हाल होगा जो आज है। अब गुंजाइश नहीं है मज़ीद किसी को मुसाया या भाईचारे की हम आड़ में किसी को इस किस्म की काम करने थे। हम बातचीत करने को तैयार रहते हैं और मामला को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने प्रोग्राम की बात करना वो उनका जमहूरी और आईनी हक है। लेकिन अगर कोई तकरीब कारी करेंगे इस नीयत से तो फिर किसी तरीके से भी स्टेट जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। अगर पाबंदी के जो तमाम शराइत पूरी होती हो तो यकीनी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट फिर उसको मूव करेगी। अब अंदर बैठ के प्रोग्राम दूसरा शुरू किया होगा कि तकरीब कारी हो, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचे। तो पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो किसी तरीके से भी नरमी। पेरिस कोलोर म्यूजियम डकैती के बाद बंद कर दिया गया है। फ्रांसीसी वजीर के मुताबिक डकैती के दौरान किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली, ताहम पुलिस ने जाए वक़ुआ पर तफ्तीश शुरू कर दी है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक 3 नकाबपोश अफराद म्यूजियम खुलने के कुछ देर बाद 9 कीमती जेवरात चुराकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। और मजीद आपको बताएं कि लवर म्यूजियम की जानिब से बयान में कहा गया है कि म्यूजियम आज गैर मामूली वजूहात की बिना पर बंद रहेगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुल्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। मुश्ताक अहमद ने कहा, इस्लाम मुतासरीन अपने दुख भूलकर फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए हैं, इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस्लाम मुतासरा, खान बेला, शुजातपुर और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही की है, जिसके निशानात वाज़ेह हैं। मैं अपने इस्लाम मुतासरीन भाइयों के साथ हूँ और इमदाद को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज ने मुझे जेल में रखा, तशद्दुद किया। मैंने उनके जज को कहा कि हम इसराइल को नहीं मानते, हम अपने तीसरे हरम मस्जिद अक्सा को सहूनियों से आज़ाद करवाएंगे। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। इस मौका पर आज़ाद फ़लस्तीन के नारे भी लगाए गए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक और चेयरमैन बोर्ड पंजाब जाहिद सईद का ज़ेर तमीर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का दौरा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और जाहिद सईद ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट की साइट पर जारी पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान अफसरान ने मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, हुकूमत पंजाब 72 अरब रुपये की लागत से 915 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च बना रही है। प्रोजेक्ट पर काम दिन रात जारी है। रिसर्च सेंटर पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सरकारी कैंसर अस्पताल होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कैंसर के लेवल 3 और लेवल 4 मरीजों का भी इंशाल्लाह मुफ्त इलाज होगा। मजीद कहा कि IDF को नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त पर फंक्शनल करने की हिदायत की है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बताया कैंसर इंस्टीट्यूट में इकोनोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर्स और मजीद कहा कि 10 रेडिएशन थेरेपी बंकर, ICU और 30 बेड्स का एमरजेंसी वार्ड बनेगा। 24 बेड्स के साथ तीमारदारों के क़यामगाह भी बनेगी।